Good morning, lovely children. I hope you all are well at home. Let us start our day with prayer. We must pray to God in the morning as well as before going to sleep at night. So, be ready for prayer. After that, today I have an interesting story for you. ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ शान्ति 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 ॐ Manu and Bose were friends. Manu and Bose were equal in their performance, may it be studies or sports. Bose, it's time for school. Are you coming or not? 2 minutes. I will come. Just wearing my shoes. Manu was punctual and regular in all his work, but Bose was a bit lazy guy and used to keep things postponing. Bose, you saw the notice board? There is a competition to be held by next week. You know the topic? I haven't seen the notice board. Tell me what the topic is. It's about cricket. And you know what the prize is for the winner? A cricket gear. What? A cricket gear? Oh, I will take part in this competition. Me too. We have to write a 2-page essay on the game cricket and submit it by Monday, the next week. Oh, Monday. We have still 5 days for that. A lot of time. But we need to collect the articles. Let's go to the library tomorrow. The next day, Bose, come, let's go to the library. No, I am going to play. Saturday is holiday. I will go to library on that day. You carry on. Manu wrote the article on cricket and submitted it on the Friday itself, while Bose planned to submit it on Monday. On Monday, Bose, come on, it's getting late for school. Manu, you carry on. I will be little late to school. so Manu left to school. Bose reached the school late by half an hour. He rushed to his teacher to submit his article. Keep it on my table and go to your class. In the evening, Bose, come here. I cannot accept your article because you were late in the submission. But to be honest, your article was wonderful, better than Manu's. Manu, you have won the first prize. Bose, if you would have submitted it earlier, then definitely you would have won the prize. Sorry, teacher. At least now you can correct yourself. Be punctual and do things regularly. Do not worry, Bose. At least from now, do not keep things for later. I will share my prize with you. Come, let's go now. from that day, Bose was very punctual. This made his parents and teachers happy. Yes, students. Today we will take up the next topic, verbs. Lesson number 6 of your grammar book. This is given on page number 50. Page number 50 of your grammar book. Open the book and see lesson number 6, verbs. Today we will take up the topic verbs. Verbs क्या है बेटा? Verb is a word that shows an action. जब हमें किसी वर्ड से ये पता चलता है कि कोई एक्शन हो रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं? वर्ब. उस वर्ड को हम वर्ब बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल सी दिस इज अ कार. सबको दिख रही है ना कार? कार है ना? दिस इज अ कार. अब ये कार भी देखो, द व्हील्स आर मूविंग. अब इस कार के व्हील्स जो हैं वो चल रहे हैं. द व्हील्स ऑफ द कार आर मूविंग, है ना? ये देखो व्हील्स चल रहे हैं. कार चलती है ना ऐसे, व्हील्स चलने से, है ना, मूव होते हैं. तो मूविंग क्या हो गया
वर्ब। मूविंग वर्ड क्या है इसमें? वर्ब। और देखो ये टॉय है, अब इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो ये क्या है? मूव कर रहा है ना, है ना? ये देखो ये रोटेट हो रहा है ना, द टॉय इज रोटेटिंग। ये देखो ये गोल गोल घूम रहे हैं ना, इसके अंदर जो टॉयज हैं सब घूम रहे हैं ना, रोटेट हो रहे हैं। तो रोटेटिंग क्या हो गया? दिस इज ऑल्सो अ वर्ब। नाउ आई एम टीचिंग, मैं क्या कर रही हूँ? पढ़ा रही हूँ ना आपको। आई एम टीचिंग, तो टीचिंग वर्ब क्या है? क्या है टीचिंग? वर्ब। क्योंकि एक्शन पता चल रहा है, कोई एक्शन हो रहा है। आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ी हूँ, खड़ी हूँ ना यहाँ, तो स्टैंडिंग क्या हो गया? दैट इज ऑल्सो अ वर्ब। इसमें एक्शन पता चल रहा है ना, हम क्या काम कर रहे हैं, क्या एक्शन है हमारा, तो वो क्या हो जाएगा? वो होगा वर्ब। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो। शी ड्रैंक मिल्क। अब इसमें ड्रैंक क्या है? ड्रैंक इज वर्ब। ड्रैंक क्या है? वर्ब। क्योंकि ये पता चल रहा है कि वो क्या किया उसने, क्या काम किया उसने। जो काम किया वो क्या है? ड्रैंक। दूध पिया ना उसने, तो ड्रैंक यहाँ पे वर्ब आ गया। नेक्स्ट इज मैरी मेक्स टेस्टी कुकीज। अब मैरी क्या करती है? टेस्टी क्या करती है? टेस्टी कुकीज बनाती है। मेक्स बनाती है ना, तो ये मेक्स क्या हो गया? वर्ब हो गया। क्योंकि हमें इससे क्या पता चलता है? एक्शन पता चल रहा है कि क्या एक्शन हुआ है। जो एक्शन वर्ड है उसको क्या बोलते हैं? वर्ब। आई थिंक द डेफिनेशन इज क्लियर टू यू। अब क्या है बेटा? वर्ब्स की टू काइंड्स हैं, टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स है। फर्स्ट इज ट्रांजिटिव वर्ब्स और सेकंड वन इज इंट्रांजिटिव वर्ब्स। कौन कौन से वर्ब्स हैं? ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। दो तरह के वर्ड्स हम आज पढ़ेंगे, दो वर्ड्स। नाउ चिल्ड्रन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अप ट्रांजिटिव वर्ब। सबसे पहले हम ट्रांजिटिव वर्ब की बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि वर्ब जो है, वर्ब के बिना हमारा सेंटेंस जो है वो हमेशा इनकम्प्लीट होगा। सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा विदाउट वर्ब। वर्ब का होना बहुत जरूरी है सेंटेंस में, ठीक है? और ट्रांजिटिव वर्ब्स जो है वो क्या होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं उनमें जो है ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है सेंटेंस के कंप्लीट होने में, या फिर हमारा जो थॉट है, जो थॉट हम ले रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, उसको कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल, अवी हैमर्ड द नेल इनटू द वॉल। अब ये कंप्लीट सेंटेंस है कि अभी ने जो है दीवार में नेल जो है, कील जो है वो लगाया। किससे लगाया? हैमर के साथ, हथौड़े के साथ, ठीक है? तो अगर हम ये कहें अभी हैमर्ड द नेल, इतना ही लिखे हम खाली, तो ये भी हमारा सेंटेंस बन सकता है हैमर्ड द नेल तक। लेकिन वो कौन सा सेंटेंस होगा? ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ठीक है ना? हमें ये नहीं पता चला कि उसने कहाँ पे हैमर किया नेल को, कहाँ उसने लगाया। नेल लगाया है तो कहाँ लगाया है, ठीक है? अब हमें, अगर हमने आगे इनटू द वॉल ऐड कर दिया तो हमें क्लियर हो गया कि अभी ने कहाँ पे नेल लगाया है? दीवार में, ठीक है? तो ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, इनटू द वॉल। तो ये ऑब्जेक्ट के साथ जब आया है ये सेंटेंस कंप्लीट होकर, तो ये क्या बना? ट्रांजिटिव, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन इज विवेक जंप ऑन द बेड। विवेक ने जंप किया, कहाँ पे किया? बेड पे, ऑन द बेड। अगर हम ये लिखें विवेक जंप, तो ये सिर्फ भी कंप्लीट है कि हाँ विवेक ने जंप किया, विवेक कूदा। लेकिन हमें ये पता नहीं है कि कहाँ पे कूदा, कहाँ पे कूदा उसने? बेड पे। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमने ये ऑब्जेक्ट ऐड किया है। क्या किया है? ऑन द बेड। ऑन द बेड हमारा ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट सेंटेंस में प्रेजेंट है तो वो सेंटेंस क्या होगा? ट्रांजिटिव। क्या होगा? ट्रांजिटिव। नाउ द नेक्स्ट इज इंट्रांजिटिव वर्ब्स। जैसे हमने ट्रांजिटिव किए थे, अब उससे बिल्कुल ऑपोजिट इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसमें क्या है? एन इंट्रांजिटिव
verb does not require an object to express a complete thought. जब हम ट्रांजिटिव कर रहे थे तो उसमें क्या था, ये डज नॉट नहीं था, वहां पे हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत थी, वी रिक्वायर्ड एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें इंट्रांजिटिव में हमें इसकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं है, किसकी, ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट हमें नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। जिसमें ऑब्जेक्ट मिसिंग होगा जिस सेंटेंस में, वो कौन सा सेंटेंस होगा, इंट्रांजिटिव। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय जंप्ड, बॉय ने जंप किया, लेकिन कहाँ पे किया, वी डोंट नो, हमें नहीं मालूम कहाँ जंप किया या फिर कैसे जंप किया, कुछ भी नहीं पता, हमें बस इतना पता है कि बॉय ने जंप किया। तो ये इसमें ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया ये, ठीक है ना। नेक्स्ट इज द विंड ब्लोस, अब विंड चली, हवा चली, हवा चल रही है, चलती है हवा, कैसे चलती है, कहाँ चलती है, हमें कुछ नहीं पता, वी डोंट नो, ठीक है ना। तो इसमें भी खाली ये है, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं है, ठीक है, सब्जेक्ट है और वर्ब है, यहाँ भी सब्जेक्ट है और वर्ब है, ऑब्जेक्ट तो आगे है ही नहीं, तो यहाँ पे कौन सा वर्ब हो गया, ये इंट्रांजिटिव वर्ब। अब आपको बेटा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्लैरिटी हो गई है कि ट्रांजिटिव वर्ब जो होंगे उनमें ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है और इंट्रांजिटिव वर्ब्स में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अब नाउ लुक एट योर रूफ, अपनी ऊपर छत की तरफ देखो, सीलिंग में देखो, सीलिंग में क्या है, द फैन इज मूविंग, फैन मूव कर रहा है ना, तो ये मूविंग क्या हो गया हमारा, क्या हो गया मूविंग हमारा, वर्ब, ठीक है। द फैन इज मूविंग, बस इतना ही है हमारा सेंटेंस, तो क्या हो गया ये, इसमें कौन सा वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, ठीक है ना। तो अगर हम इसको ये बोलते हैं द फैन इज मूविंग ऑन द सीलिंग, की छत पर मूव कर रहा है फैन, तो वो क्या हो गया, ऑन द सीलिंग हमने ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया, तो वो क्या बन गया, वो ट्रांजिटिव बन गया, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट आ गया ना, तो वो क्या बन गया हमारा, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। इसी तरह से आपने और भी बहुत से अपने आसपास में एग्जाम्पल्स ढूंढने हैं अपने घर में। आप जब भी देखते हो ना इधर उधर जो भी चीज आपको नजर आती है, देखो उसमें कौन सा ट्रांजिटिव हो सकता है सेंटेंस, कौन सा इंट्रांजिटिव। इसके बाद हम अभी और भी करेंगे, ठीक है। नाउ इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होती है बेटा, पहले हमने किया था सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है, तीन चीजें बताई थी ना मैंने। वर्ब में भी मैंने आपको बताया दो तरह के वर्ब्स हैं, एक है ट्रांजिटिव वर्ब, एक इंट्रांजिटिव वर्ब, दो तरह के वर्ब्स बताए थे, है ना। अब हम करेंगे ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हमने किए वर्ब, वर्ब के बाद हम करेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी टू टाइप्स के हैं, एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। Direct object is directly affected by the action of a verb. Direct object जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि वो एक्शन जो है वर्ब का उससे डायरेक्टली अफेक्ट होता है, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली अफेक्ट होता है। इट आंसर्स द क्वेश्चंस व्हाट और whom। ये कौन से क्वेश्चन का आंसर करते हैं, व्हाट और whom। Now the next one is indirect objects. पहले हमने direct objects किए थे, अब indirect objects. An indirect object is indirectly affected by the action of a verb. ठीक है, indirect object होती है जो, वो indirectly जो है किससे एक्शन से indirectly affect होती है, एक्शन से, ठीक है। ये आपको इसमें किस चीज का आंसर मिल रहा है, इट आंसर्स द क्वेश्चन टू whom, for whom, for what। पहले हमें किसका आंसर मिल रहा था, what और whom का आंसर मिल रहा था, वो डायरेक्टली मिल रहा था, ठीक है, कि उसके साथ, ठीक है। अब क्या है, किसके लिए, टू whom, किससे, for whom एंड for what। अब इसमें इनडायरेक्ट आंसर्स आ रहे हैं हमारे पास,
ठीक है, अब हम थोड़ा एग्जाम्पल्स करेंगे ना, जब इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे तब बेटा आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, ये दोनों जो है डेफिनेशंस तब आपको अच्छे से क्लियर होगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स की। एक बार फिर से बता दूं, एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ अ वर्ब। वर्ब का कोई भी जो भी एक्शन है उससे इनडायरेक्टली जो अफेक्ट होती हैं जो ऑब्जेक्ट्स, उसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, यस। नाउ द एग्जांपल्स आर, फर्स्ट इज अनुषा हिट राधा विद अ बॉल। इसमें अनुषा ने क्या किया, हिट किया राधा को बॉल के साथ। अनुषा ने किसके साथ हिट किया, बॉल के साथ। तो बॉल क्या आ गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और किसको हिट किया, कैसे किया, टू हूम। किसको किया, टू हूम का आंसर है ना ये। पहले वाले में क्या है, अनुषा ने विद व्हाट, किस चीज के साथ, व्हाट, किसके साथ हिट किया, बॉल के साथ। तो व्हाट का आंसर आ गया, तो क्या बना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब किसको हिट किया बॉल के साथ, किसको हिट किया है, राधा को। तो राधा क्या आ जाएगा इसमें, टू हूम हो गया ना, टू हूम का आंसर कि किसको। तो ये क्या बना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया बेटा एग्जाम्पल के साथ। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अनुषा हिट राधा। अनुषा ने किसको हिट किया, टू हूम, किसको, हूम, किसको, हूम, सॉरी, किसको हिट किया, हूम, राधा को। राधा क्या आ गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें कोई इनडायरेक्ट का है ही नहीं। नेक्स्ट नंबर 3, he offered chips to me। उसने चिप्स ऑफर किए किसको, मुझे। उसने क्या ऑफर किए, व्हाट ऑफर, व्हाट का आंसर मिल रहा है, तो क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, किससे मिल रहा है, व्हाट में है, चिप्स। क्या ऑफर किया, चिप्स, तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद टू मी, टू हूम, किसको किए, टू हूम, टू हूम का आंसर मिला तो क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट नंबर 4, he punched the bag forcefully। किसको पंच किया, किसको पंच किया, बैग को। तो इसको क्या, ये क्या आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हूम, किसको पंच किया, बैग को। तो ये क्या आ गया, हूम का आंसर आ रहा है, तो क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नाउ आई थिंक ऑल दीज कंसेप्ट्स आर क्लियर टू यू। आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए हैं, इंट्रांजिटिव भी, ट्रांजिटिव भी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी। नाउ वी विल कम टू द एक्सरसाइज पार्ट। Now we have worksheet 1 given on page 52. Circle the verbs whether they are transitive or intransitive. In sentences में you have to circle the verbs if they are transitive or intransitive. Verbs को आपने circle करना है और लिखना है कि वो transitive है या intransitive है। ठीक है, नंबर 1, my uncle gifted me a watch। अब बेटा इसमें देखो वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, ये आपने यहाँ पे पहले वर्ब को सर्कल करना है। देन यू हैव टू राइट वेदर द वर्ब इज ट्रांजिटिव और intransitive। The next is number 2, the clock ticks all the day and night। अब आपने इसमें भी ये देखना है कि जो पहले तो आपने वर्ब करना है यहाँ पे सर्कल, उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है कि वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव है। लाइक दिस वी हैव मेनी मोर सेंटेंसेस। नंबर 3, द हंग्री लायन roars loudly। Number 4, the boy flew a colorful kite। Number 5, Mr. Roy teaches music। Number 6, we are arranging a class picnic। Number 7, Sammy plays the guitar in the band। Number 8, the car bumped into the tree। Number 9, the baby was snoring softly। Number 10, the rain pattered on the window pane।
Number 11, the little baby cries. And number 12, pretty flowers bloom in the garden. Here, in all the sentences, first of all, you have to circle the verbs and then write down whether they are transitive verbs or intransitive verbs. Here children, in this worksheet number 2, here you have to frame 10 sentences, 5 transitive and 5 intransitive using the following verbs. ये verbs आपको given हैं, इन verbs की help लेके आपने इन verbs को use करके 10 sentences बनानी है. 5 sentences transitive verb बोले and 5 intransitive बोले. और ये verbs क्या है? Scold, run, watch, clean, sit, won, sing, found, sleep, cry. इन sentences को आपने कैसे बनाना है? Transitive verb and intransitive verbs. Now we'll take up worksheet number 3 given on page 54. Underline the direct objects with blue color pencil and indirect with green color pencil. आपने ब्लू कलर की पेंसिल से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को अंडरलाइन करना है और ग्रीन कलर की पेंसिल से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को अंडरलाइन करना है. नाउ हियर नंबर 1, हैज अंकल सैम सेंट यू द पार्सल. अगर आपको लगता है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है डायरेक्ट है तो ब्लू कलर से अंडरलाइन करना, और अगर लगता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो इनडायरेक्ट है तो ग्रीन कलर से. Number 2, Sydney read her little daughter an exciting story. Number 3, Shiv's uncle gifted him a multifunctional laser printer. Number 4, Sanya has bought her dog a new collar. Number 5, will you get us free passes of the IPL? Number 6, Lily made a club sandwich for her mother. Number 7, she combed her dog's ruffled hair with a soft brush. Number 8, I presented my mother a hand-painted sari on her birthday. Number 9, Baker's Den has won our hearts with its excellent chocolate delights. Now children, you have to do all the exercises in your grammar books.